Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study a new chapter in the name of Rise of Nationalism in Europe. It is the first chapter in class 10 CBSE history. Actually it is the continuation of the French Revolution that you all had studied in grade 9. So in this video I'm going to start the explanation of the rise of nationalism in Europe and begin with the French Revolution and the ideas of the nation. If you all want such informative videos, please subscribe to my channel and press the bell icon, and do like the video and share it with your friends. So without any further delay, let's start it. So this picture which is in this front screen, it is not just an ordinary picture. It is in the name of the dream of worldwide democratic and social republics, which is the pact between nations, and it is a print prepared by Frederick Sorio in 1848. So in your textbook it is the first image that you will see. So it is a print prepared by Frederick Sorio in 1848. So it was a series of 4 prints visualizing his dream of world made of democratic and social republics, as he called them. So this is the picture in the front screen that is appearing right now. So now let's start with the French Revolution and the ideas of the nation. So the French Revolution that we had studied in 9th, उसमें हुआ क्या था? उसमें ये हुआ कि the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. मतलब फ्रांस, हमने पढ़ा था कि वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क बन गया था. इट हैड बिकम अ टेरिटोरियल, फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789. वो एक इंडिपेंडेंट बन गया था. And because of that, the revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. मतलब जो एक नेशन होगे, उसके जो पीपल होते हैं वो एक नेशन को बनाते हैं. इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि जो पीपल होते हैं वो एक नेशन को बनाते हैं और वही उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी शेप करेंगे और उसका फ्यूचर भी उसके पीपल ही शेप करते हैं. Then, from the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among French people. So, बहुत सारी practices introduce हुई जो एक collective identity मतलब unity, nationalism create करे French people में. So, what were those? So yeah, these were the steps taken by French revolutionaries to create nationalism among them. So what were they? The idea of Le Petrif, who was the fatherland, and Le Citoyen, the citizen, emphasized the notion of united community enjoying equal rights under a constitution. मतलब उन लोग का ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे. फिर दूसरा था कि फ्रेंच फ्लैग इंस्टेड ऑफ फॉर्मर रॉयल फ्लैग, मतलब जो फॉर्मल रॉयल फ्लैग यूज़ करते थे वो नहीं यूज़ करते, अब उसके बाद फ्रेंच फ्लैग यूज़ करते ताकि एक यूनिटी बनाई रखे. फिर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, द एस्टेट जनरल. अब फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली हुई ताकि यूनिटी रहे और उसमें एक द एस्टेट जनरल भी हुआ. फिर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना और कोई भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ भी अबॉलिश कर दिए गए. जो लोन्स बचे थे, ड्यूज़ थे, वो सब अबॉलिश हो गए. और फिर हुआ अडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स. सब लोगों ने यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स करा. लाइक मार्केट पे किसी फूड का वेट करना है तो सब लोग के पास यूनिफॉर्म वेट थे. जो 500 ग्राम होता है, 1 kg जैसे अभी होता है, वो उस समय सब लोग के पास यूनिफॉर्म थे, अलग अलग नहीं थे. फिर फ्रेंच बिकेम कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वही कॉमन लैंग्वेज बन गई. और रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, मतलब जो रीजनल लैंग्वेजेस और वो सब थी वो डिस्करेज थी, मतलब वो अभी नहीं हो रही, वो यूज़ नहीं कर रहे थे और फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे. न्यू हिम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन इन द नेम ऑफ नेशन. यूनिटी बने, नेशनलिज्म बढ़े, इसलिए वो लोगों ने ना ओथ ली थी ताकि लोग यूनिफाइड रहे. और वो कंपोज्ड हिम्स भी कंपोज किए थे इन द नेम ऑफ नेशन. सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स, थोड़े चेंजेस भी हुए. अब वो क्या थे?
During the 19th century, nationalism emerged as a force which changed the political and mental world of Europe, and the end result was the nation state. तो फ्रांस में इतनी चीज़ें हो गई कि यूरोप का पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड चेंज हो गया. अब वो कैसे हुआ? जैसे फ्रांस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, वैसे ही यूरोप के बाकी नेशंस को भी इंडिपेंडेंट नेशन बनना था. सो उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? अ न्यू वर्ड विच इज़ द नेशन स्टेट केम. बट वो नेशन स्टेट है क्या? So a nation state is the one in which rulers along with citizens develop a sense of common identity. मतलब जो सिटीजन्स होते हैं, जो लोग एक नेशन को बनाते हैं, और जो रूलर्स होते हैं नेशन की जो उसे रूल करते हैं, वो और सिटीजन एक कॉमन आइडेंटिटी बने. मतलब उनमें यूनिटी आई, दे वर रिकॉग्नाइज्ड और नेशनलिज्म बढ़ा. और फिर अ नेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप of people who are bound together into single body through history, customs, values, language and culture. अब जो रूलर्स थे और सिटीजन्स थे, दोनों ही एक ही नेशन से थे. इसकी वजह से वो एक सिंगल बॉडी बने. अब उनमें कॉमन क्या क्या था? उनकी जो हिस्ट्री थी, उनका जो कल्चर था, कस्टम था, वैल्यू था, लैंग्वेज था. जैसे फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज बिकेम पॉपुलर. कल्चर उन लोग के सेम थे, कस्टम्स भी रूलर्स और पीपल सिटीजन्स के सेम थे. तो इसकी वजह से वो लोग एक साथ आए. किस और क्यों एक साथ आए? जो उनकी सेम हिस्ट्री, कस्टम्स और वैल्यूज़ थे, उसकी वजह से दे वर बाउंड टुगेदर, मीन्स दे केम टुगेदर. दिस आइडेंटिटी इज forged थ्रू स्ट्रगल. मतलब ये कैसे हुई? बहुत स्ट्रगल हुआ था. जैसे हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ये कॉमन नेशनलिज्म के लिए या नेशन स्टेट बनने के लिए फ्रांस में बहुत स्ट्रगल हुआ था. सो अब नेशन स्टेट के बाद जो स्टेप्स लिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के बाद, the revolutions further declared that it was the mission and destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help other people of Europe to become nation. अब इसका क्या मतलब था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था, फ्रेंच हैड बिकम एन एब्सोल्यूट मोनार्क, और वो इंडिपेंडेंट बन गया था. इट वॉज लिबरलाइज्ड, इट वॉज फ्री. सो फ्रेंच नेशन ने सोचा कि जब वो लिबरेट हो चुका है, तो जो बाकी नेशंस है यूरोप के, वो उसकी जिम्मेदारी, इट इज़ इट्स मिशन टू लिबरेट देम एज वेल. मतलब जो बाकी नेशंस है यूरोप के, उन्हें भी लिबरेट करना फ्रेंच नेशन ने सोचा. सो इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन. This led to spread of nationalism. So in France reached different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. मतलब जब ये इवेंट्स हुए फ्रांस में, वो लिबरलाइज हुआ, वो एक नेशन स्टेट बना. ये जब दूसरे डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप में ये न्यूज़ पहुंची और बाकी नेशंस को पता चला, तो वो लोगों ने भी जैकोबिन क्लब्स सेटअप करने चालू करे. Their activities and campaigns prepared the way for French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. मतलब जब जैकोबिन क्लब्स इस्टेब्लिश हुए, तो फ्रेंच आर्मीज़ भी होलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में मूव करना चालू हुई. और उसके बाद द फ्रेंच आर्मीज़ बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. मतलब जो नेशनलिज्म आइडिया फ्रांस में था, फ्रेंच नेशन में था, वो लोगों ने बाकी नेशंस में भी स्प्रेड करना स्टार्ट किया. एंड दिस रिजल्टेड इन स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म. अब ये स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म चल रहा था, उसमें 1799 में नेपोलियन टुक ओवर द पॉलिटिकल पावर. ही abolished the democracy, he destroyed the democracy in France. मतलब जो डेमोक्रेसी थी फ्रांस में, सबको इक्वल राइट्स मिले और वो सब, वो नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय कर दी.
He introduced reforms not only in France but also in other parts of Europe. मतलब जो फ्रांस ने कॉन्कोर किए थे अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, उसमें भी जो रिफॉर्म्स थे वो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करे. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. But in administrative field, he incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. मतलब जो सारी चीज़ें नेपोलियन ने करी सारी बुरी नहीं थी. ये जो बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ये अच्छी चीज़ थी. ही इनकॉर्पोरेटेड मतलब उसने ऐसी प्रिंसिपल सेट करी, मतलब जो गवर्नमेंट का फंक्शनिंग का तरीका होता है उसके ऐसे रूल सेट किए कि वो बहुत रैशनल, वो बहुत अच्छे थे, एफिशिएंट थे. एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छे रूल्स थे. ही सेट सच रूल्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड. सो सारे काम उसके बुरे नहीं थे, ये बहुत अच्छे काम थे. अब he also set a civil code of 1804 usually known as Napoleonic Code. वो all privileges based on birth, वो जो कोड थे वो उसने ले लिए. मतलब अब जो privileges based on birth थे अब वैसा कोई privilege नहीं रहेगा. He established equality before the law and secured the right to property. This code was exported to regions under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. मतलब जो regions थे डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, वो फ्रेंच के कंट्रोल में थे और फ्रांस ने उन्हें कॉन्कर कर दिया था. तो ये जो कोड था सिविल कोड ऑफ 1804 वो इन रीजन्स पर भी एप्लीकेबल था. सो लेट्स सी the civil code of 1804. It established equality before law. वो कैसे हुआ? जो राइट्स थे बेस्ड ऑन बर्थ, जो भी प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ वो कैंसिल कर दिए गए थे. मीन्स सब लॉ के लिए इक्वल है. ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ. मतलब कोई ऊपर, मतलब कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं है. रिच और पुअर का डिफरेंस नहीं था. ही एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ. फिर राइट टू प्रॉपर्टी means everybody had the right to property. Men, women, rich, poor, everyone was given the right to property. Then the feudal system was abolished. अब feudal system क्या है? तो फ्यूडल सिस्टम वो है जो डिस्क्रिमिनेशन तो होता था रिच और पुअर में, अमीर गरीब में, सुविधाओं के लिए, लाइक फॉर पॉलिसीज़, फॉर money, for property. The discrimination which was there between rich and poor, like rich can have property, poor cannot. Rich has more facilities like more suvidha and poor people do not have. So this was abolished, meaning the discrimination between rich and poor was abolished. Then he freed peasants from manorial use or the fees that peasants or serfs of farmer owe to the nobles who is their landlord. मतलब जो लैंडलॉर्ड थे उनके यहाँ पे जो फार्मर्स या टेनेंट्स थे जो लैंडलॉर्ड के नीचे काम करते थे, वो लोग ने बहुत लैंडलॉर्ड से लोन्स लिए थे, उनके ड्यूज़ बाकी थे बिकॉज दे वर पुअर. सो जो ड्यूज़ थे, जो भी लोन्स लिए थे वो सब मिटा दिए गए थे सिविल कोड ऑफ 1804 से. मतलब उन्हें कुछ भरना नहीं था लैंडलॉर्ड को. जो भी फार्मर्स जो लैंडलॉर्ड को ओ करते थे उन्हें कुछ पैसा नहीं देना था. दे डिड नॉट हैड टू पे एनीथिंग टू द लैंडलॉर्ड. देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड. Then guild restrictions were removed in cities. अब guild restrictions क्या होते हैं? They refer to certain restrictions imposed on the association in terms of trade or manufacturing. मतलब पहले restrictions थे, मतलब ये हो सकता है जो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस थे उसमें बहुत सारे restrictions थे, ये हो सकते हैं, नहीं हो सकता है. अब वो restrictions हटा दिए गए थे अकॉर्डिंग टू सिविल कोड ऑफ 1804. अभी सिविल कोड हमने डिस्कस किया, ये कौन से ये है क्या, पर उसका मीनिंग क्या है? सिविल कोड रिफर्स टू सर्टेन सेट ऑफ रूल्स. मतलब ये जो रूल्स है वो उसका जो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होता है उसका मतलब होता है सिविल कोड. मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ ये रूल्स है जो सिविल कोड के अंदर आते हैं. So Civil Code of 1804, also known as Napoleonic Code, refers to certain set of rules that the French nation had to follow, along with the conquered territories of France had to follow. So these were the Civil Code. This was the Civil Code and these were the rules.
I hope you liked this session. If you did, please subscribe to my channel and share it with your friends and relatives. Thank you and have a nice day.